Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss these operators in MySQL. We will start with distinct, then between, not between, in, not in, like, not like, and then is null and is not null. In our previous video, we have also covered some MySQL commands. If you have not watched those videos, I will provide you the link of those videos in my description also. So let's start. First command is distinct command. Distinct command is used to eliminate the redundant data. Redundant means duplicate data. जो भी आपकी उसमें डेटा है कॉलम में, it may be possible उसमें multiple values हो, same type की जो values होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Duplicate values or redundant data. So to eliminate the redundant data, we use the keyword distinct. And the syntax to use the distinct command is select distinct. Here you have to write the name of a column from name of the table. Now suppose मैंने एक student name की table में एक student का data बनाया, उसमें student wise details लिखी, roll number 1, name, class, stream. तो सभी students के पास different stream होंगी. Now suppose if I want to check कि कौन कौन से streams हैं, so for that I have to write select distinct and then column name is stream from the name of the table, that is student. So as you can see, आपकी जो values show होंगी वो आपकी सारी क्या हैं? Distinct. Let's execute this practically also. If you have watched my previous videos, तो आपको पता होगा कि मैंने जो है different tables create कर रखी हैं, PPT के लिए अलग and separate to show you the practically also. So here we are having the employee database and the name of my table is EMP. ठीक है, as you can see अब मेरे पास ये डेटा आ चुका है. इसमें आपकी I think कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. Let's insert the one row. Insert into table name values 111 employee ID, employee name, let's suppose Swati, or we can repeat this, let's suppose it's Sushil. ठीक है, जो 102 employee name है उसका भी यही है name, तो I have written the same, then date of birth 1982, year, month and then date. After that salary, let's suppose 35,000 and then commission. ठीक है, तो as you can see अगर मैं अब अपना डेटा देखूं तो सुशील नाम से मेरे पास 2 एम्प्लॉइज हैं. अगर मुझे एम्प्लॉय नेम्स की लिस्ट देखनी हो जो डिस्टिंक्ट हो तो व्हाट आई विल राइट, सेलेक्ट कॉलम का नेम डिस्टिंक्ट, देन कॉलम नेम ई नेम from the name of the table, that is EMP. तो as you can see सुशील अब मुझे एक ही टाइम डिस्प्ले होगा instead of 2 times. If I want to apply the distinct keyword on salary also, as you can see इसमें 35,000 repeat हो रहा है 2 times, 3 times sorry, first this and this. तो अगर मुझे सैलरी देखनी है कि मैं कितने एम्प्लॉइज को कितना स्केल दे रही हूँ, so for that I have to write select distinct then salary from the name of the table. तो as you can see जो मेरी values repeat हो रही थी, it will show you the ones. तो it is eliminating the redundant data, और redundant means duplicate data. और अगर आपके कॉलम में null values हैं और null values repeat हो रही हैं तो then it will show you ones. तो जो मेरा date of birth कॉलम है उसमें मेरा null values 2 times आ रही है, तो जब मैंने distinct कमांड लगाई तो then it will show me only once. Only one null value is returned in the result, no matter how many null values are encountered. Next operator is between operator. Between का मतलब क्या होता है? Within a range. तो अगर आपको कोई कंडीशन लगानी हो between the range, means starting value and ending value,
So for that we have to use the between operator. This operator defines the range of values that the column values must fall in to make the condition true. Range of values में suppose मैंने range लगाई 50 to 100, तो 50 to 100 रेंज की वैल्यूज आएंगी और जो मेरी बाउंड्री वैल्यूज है 50 and 100, तो those boundary values will also be included. The range includes both the upper value as well as the lower value. And the syntax for between operator is select. You have to write the name of columns here, from table name, where उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिस पर मुझे रेंज कंडीशन अप्लाई करनी है, कॉलम नेम, बिटवीन और स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जो रेंज आपने प्रोवाइड करनी है. लेट्स सी द एग्जांपल. नाउ सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 50 to 70. तो व्हाट विल बी माय सिंटैक्स? सेलेक्ट, जो मुझे डिस्प्ले कराना है, आई हैव टू डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स, सो हियर आई एम राइटिंग नेम comma marks from the name of table student where marks between 50 and 70. तो मेरे 50 और 70 भी इंक्लूड होंगे एंड एज यू कैन सी इन द आउटपुट 50 to 70 मेरे सारे वैल्यूज क्या होंगे, रिजल्ट में डिस्प्ले होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है, सपोज आई एम राइटिंग 55 and 75, तो एज यू कैन सी ये मेरी बाउंड्री वैल्यूज को भी इंक्लूड करेगा. नेक्स्ट इज नॉट बिटवीन. नॉट बिटवीन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ योर बिटवीन ऑपरेटर. जो मैं रेंज लिखूंगी उस रेंज को छोड़कर ये वैल्यूज दिखाएगा. ठीक है, रिवर्स ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर. एंड व्हाट विल बी द सिंटैक्स फॉर दिस? सेलेक्ट. हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम नॉट बिटवीन देन स्टार्ट एंड end values. तो as you can see not between 5 and 75, तो 5 और 75 को छोड़कर जो values है ये it will display those records. Let's execute this practically also now. Let me show you my table first. The same table, select star from employee. Now I want to display the record, complete record of those employees who are having salary between 50 to 70,000. So what command I will use? Select. If I want to display all the records, that means star from the name of table employee where salary. किस कॉलम पर कंडीशन लगानी है? सैलरी बिटवीन, यहाँ पर आपने रेंज लिखनी है 50,000 and 70,000. चेक द सिंटेक्स वेरी केयरफुली. 50,000 के बाद एंड है, 2 नहीं आएगा. ठीक है, तो एज यू कैन सी 50,000 जो मेरी बाउंड्री वैल्यू है वो भी इंक्लूड होएगी. अगर 70,000 होता मेरी टेबल में वैल्यू तो 70,000 भी आपका इंक्लूड होता. तो एज यू कैन सी नाउ इट इज शोइंग मी द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज व्हिच आर हैविंग सैलरी बिटवीन 50 and 70,000. अगर मुझे इसका रिवर्स करना हो तो आई विल राइट नॉट बिटवीन. तो 50 और 70,000 को छोड़कर जो बाकी वैल्यूज होंगी it will show me the record of those employees. तो as you can see जब मैंने between में 50 और 70 लिखा तो बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड हो गई, तो वो वैल्यू मेरी नॉट बिटवीन में इंक्लूड नहीं होगी. लेट्स चेक द एग्जांपल ऑफ दिस 50,000. ठीक है, मेरा नॉट बिटवीन क्या कहता है? जो वैल्यूज बिटवीन की रेंज में है उसको छोड़ करके बाकी वैल्यूज प्रिंट करेंगे. तो अगर मैं 50,000 और 70,000 बिटवीन में लिख रही हूँ तो 50 और 70 बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी. तो इसलिए जब मैं नॉट बिटवीन लिखूंगी तो आपकी बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि उसको छोड़कर उसने बाकी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है. लेट्स मूव फर्दर नाउ. जो हमारा बिटवीन ऑपरेटर था वो वर्क करता है कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज, कि अगर मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज देनी हो. नाउ माय नेक्स्ट ऑपरेटर इज इन ऑपरेटर. इट इज यूज कि जब हमारे पास काफी सारे लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो उसके बेस पर मुझे कंडीशन लगानी है. ठीक है, द इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज. कि जो मेरे लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उसकी बेस पर हम चेक करेंगे. एंड द सिंटैक्स फॉर दिस इज सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन.
यहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा, जिस कॉलम की लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे इन, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो एज यू कैन सी द एग्जाम्पल कि जो मेरे पास स्टूडेंट टेबल है उसमें हमारे पास 4 स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। एंड नाउ आई एम राइटिंग द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, किस कॉलम पर हम इन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, स्ट्रीम। दिस इज माय इन ऑपरेटर। अगर आपका कॉलम varchar या कैर डेटा टाइप का है तो आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या लिखोगे, विद इन कोट्स, और वैल्यू है तो यू कैन राइट विदाउट कोट्स आल्सो। सो हियर आई हैव रिटन ह्यूमैनिटीज कोमा कॉमर्स। तो ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स मेरी क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो जिसकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स होगी आप वो वाले सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। इसी कमांड को करने का एक सेकंड मेथड है बेटा मेरे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू ह्यूमैनिटीज और स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स। दोनों से मेरा आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। बट अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो तो और ऑपरेटर से आपकी जो स्टेटमेंट है वो काफी कॉम्प्लेक्स और लेंथी हो जाएगी। सो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम वी विल यूज इन ऑपरेटर। नेक्स्ट इज नॉट इन। जैसे आपका नॉट बिटवीन था, जस्ट रिवर्स ऑफ बिटवीन, ऐसे ही हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर है, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल वेयर कॉलम नेम नॉट इन एंड देन इन द ब्रैकेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो एज यू कैन सी अब मैंने लिखा नॉट इन ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। तो जो मेरे को वैल्यूज डिस्प्ले होंगी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स छोड़ करके जो भी स्ट्रीम कॉलम में वैल्यूज हैं, इट विल शो मी दोज वैल्यूज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैटर्न मैचिंग। ठीक है, पैटर्न मैचिंग के लिए आपका कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, लाइक ऑपरेटर। इसका जो मेन कंसेप्ट है बेटा, उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं पैटर्न्स को चेक करने के लिए। पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इनको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज एंड सेकेंड इज अंडरस्कोर। इसमें आपने बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 कैरेक्टर्स, तो देन वी विल यूज परसेंटेज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल कैरेक्टर, अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द अंडरस्कोर ऑपरेटर। इसके आपको पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट टू। लेट्स डिस्कस दैट नाउ। Now let's see the syntax of this. The syntax will be select column name from table name where जिस कॉलम का पैटर्न मैच करना हो, here you have to write the name of that column, फिर like पैटर्न की जो कंडीशन होगी। Let me show you this. इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं। It will be more clear to you with the help of example. ठीक है, suppose I want to display name of those students whose name starts with N, जिसका नेम किससे स्टार्ट होता हो, N से। अब मैंने आपको बेटा 2 वाइल्ड कार्ड्स बताए हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। अगर मैं मोर देन 1 कैरेक्टर्स की बात करूंगी तो दैट मीन्स परसेंटेज, अगर मैं सिंगल कैरेक्टर की बात करूंगी तो देन दैट मीन्स अंडरस्कोर। अब देखो मेरा कुछ क्या है, किससे स्टार्ट होना चाहिए, N से, तो मैंने ये फिक्स कर दिया, स्टार्ट तो मेरा किससे होगा, N से। ठीक है, मेन जो आपका रहेगा वो ये सिर्फ ये पैटर्न बनाने के लिए, बाकी सिंटेक्स आप लोग लिख लोगे। अब अगर वो स्टार्ट N से हो रहा है तो आगे तो कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, तो दैट मीन्स मोर देन 1 कैरेक्टर्स के लिए आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज। सो योर सिंटेक्स विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम, दैट मीन्स कॉलम नेम, लाइक एंड परसेंट, और ये आप लिखेंगे विद इन कोट्स। ये आपकी पैटर्न मैचिंग की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम एंड्स विद ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लास्ट वर्ड फिक्स हो गया, क्या, एंड्स विद ए, और आगे तो हमारे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स वी विल यूज परसेंटेज। सो द सिंटेक्स विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम
लाइक विद इन कोट्स क्या लिखेंगे, परसेंटेज ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन विच सेकेंड कैरेक्टर इज आई। ठीक है, अब देखो सेकेंड कैरेक्टर लिखना है, क्या सेकेंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आई। तो मैंने ये सेकेंड प्लेस पर क्या लिख दिया अपना बेटा, आई। अब ये सेकेंड पोजीशन पर है तो इससे पहले सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा। अगर मैं एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई हैव टू यूज अंडरस्कोर, और आई के बाद आपका कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स, सो दैट मीन्स परसेंटेज। सो आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, अंडरस्कोर आई परसेंटेज। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे हम, सेकेंड कैरेक्टर आपका फिक्स है दैट इज आई, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई। उसके बाद ये सेकेंड कैरेक्टर है तो इससे पहले आपका एक ही कैरेक्टर होगा, वो फिक्स है एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के लिए हम कुछ पर्टिकुलर फिक्स कैरेक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर। सो फॉर दैट हियर आई हैव यूज्ड अंडरस्कोर। अब आई के बाद आपके कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड परसेंटेज सिंबल। तो एज यू कैन सी ये मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाएगा जिसका सेकेंड पोजीशन पर क्या है, आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल, डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स इन विच लास्ट सेकेंड कैरेक्टर इज एच। अब लास्ट सेकेंड कैरेक्टर ये आपका एच हो गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर, क्योंकि उसके बाद मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए, बट इस एच से पहले कुछ भी हो सकता है, तो दैट मीन्स परसेंटेज। ठीक है, सो फॉर दैट द सिंटेक्स विल बी अंडरस्कोर, सॉरी परसेंटेज एच अंडरस्कोर। तो एज यू कैन सी मुझे सिर्फ वही नेम्स डिस्प्ले होंगे जिसमें लास्ट सेकेंड कैरेक्टर मेरा क्या है, एच। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग 5 कैरेक्टर्स इन देयर नेम्स। अब मैंने फिक्स कर दिया 5 कैरेक्टर्स, तो दैट मीन्स आई हैव टू यूज द 5 टाइम्स अंडरस्कोर। अगर मैं परसेंटेज लिख दूंगी, परसेंटेज में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट अगर मैंने कैरेक्टर फिक्स कर दिए 5, तो दैट मीन्स 1 अंडरस्कोर फॉर 1 कैरेक्टर, सेकंड अंडरस्कोर फॉर सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, मैंने कहीं पर अल्फाबेट नहीं फिक्स किया कि फर्स्ट पोजीशन पर यही हो। ठीक है, सो फॉर दैट इट विल शो यू द नेम्स ऑफ ओनली 5 कैरेक्टर्स। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस। Now let me show you my table first. So now suppose I want to display those records जिसका second alphabet क्या हो, character H. तो select star from table name where e name पर कंडीशन लगा रहे हैं, like within quotes लिखेंगे। अब मेरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एच। फर्स्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया, अंडरस्कोर। सेकेंड प्लेस पर एच फिक्स हो गया, इसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स, सो फॉर दैट अंडरस्कोर। ठीक है, तो एज यू कैन सी जो सेकेंड पोजीशन पर एच है मुझे वो डिस्प्ले होंगे। आप इस तरीके से अपने कोई भी पैटर्न बना सकते हो। नॉट लाइक इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ लिख दूं वेयर नॉट लाइक, तो एज यू कैन सी उस शेखर और शशांक 2 स्टूडेंट्स को छोड़ करके, 2 एम्प्लॉइज को छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने इसमें लिखा वेयर नेम नॉट लाइक, वो 5 अंडरस्कोर वाला किया था, उस 5 को छोड़कर मुझे बाकी सारे नेम्स डिस्प्ले होंगे। माय नेक्स्ट ऑपरेटर इज नल ऑपरेटर, कि अगर मुझे अपनी कोई नल वैल्यूज चेक करनी है किसी कॉलम के लिए, सो फॉर दैट वी आर हैविंग is null operator, and the syntax is select column name from table name where column name is null, जहां पर column name क्या होगा, is null। अब मैंने एग्जांपल लिखा, select star from table name where date of birth is null, that means जहां जहां पर मेरी date of birth null होएगी ये मुझे वो रिकॉर्ड शो करेगा, and not null is just the opposite of this। Let's execute this practically now। This is my table. Now I want to display the record of those students where date of birth is null. So what I will write? Select star from table name where DOB is null.
मेरा डेट ऑफ बर्थ नल जो है सिर्फ एक ही लोकेशन पर है जिसका रोल नंबर क्या है 103। तो एज यू कैन सी अब मुझे सिर्फ वही वो रिकॉर्ड शो करेगा। और अगर इज नॉट नल लिखना तो उस जो 103 था उसको छोड़ के बाकी मीन्स जिसमें नल वैल्यूज नहीं है वो वाले सारे रिकॉर्ड शो करेगा। लेट्स क्विकली रिवाइज अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। वी हैव स्टार्टेड विद द डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। डिस्टिंक्ट में क्या होता है, जो भी आपकी रिडंडेंट वैल्यूज होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज, वो आपकी एक ही बार शो होंगी। आफ्टर दैट हमने बिटवीन ऑपरेटर किया जिसमें हमने रेंज स्पेसिफाई की, आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज भी लेगा, नॉट बिटवीन, रिवर्स ऑफ दैट उस रेंज के बाहर की वैल्यूज को वो डिस्प्ले करेगा। इन ऑपरेटर में आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे रिकॉर्ड्स वो शो होंगे। नॉट इन, जस्ट द रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर आपका पैटर्न मैच के लिए यूज होगा। इफ यू हैव टू मैच विद मल्टीपल कैरेक्टर्स then percentage wildcard will be used. If you have to go for a single character, then underscore. And note like is just the reverse of that. I hope all these concepts are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, please do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.